Hello everyone. In this video, I am going to tell you about School of Functionalism. Functionalism was given by Bronislaw Kaspar Malinowski, and that is why he is known as father of functionalist school, and he is also known as father of modern anthropology. And here are some books written by him: The Family Among the Australian Aborigines, Kula, The Circulating Exchanges of Valuables, Argonauts of Western Pacific, Crime and Custom in Savage Society, Sex and Repression in Savage Society, Coral Gardens in Their Magic, Freedom and Civilization, A Scientific Theory of Culture, Dynamics of Culture Change, Sex, Culture and Myth, A Diary in strict sense of the term. So these are the books written by him. He was called Man of Song by Trovanders. He worked on Trovand Island, and the people of Trovand Island called him Man of Song. He is known as father of functionalism school and the father of modern anthropology. He viewed that anthropology should be used to make human life and society easier, simpler and pleasant. And according to him, culture is the instrument to fulfill basic derived and integrative needs. तो उन्होंने कल्चर को इंस्ट्रूमेंट माना कि कल्चर इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी बेसिक डिराइव्ड और इंटीग्रेटिव नीड्स को फुलफिल करता है. एंड हिज अप्रोच वाज सिंक्रोनिक अप्रोच. ही बिलीव्ड that to study the societies in their present, प्रेजेंट में स्टडी करने पर उन्होंने बल दिया. और जो डायक्रॉनिक अप्रोच था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया एज फॉलोड बाय इवोल्यूशनिस्ट एंड डिफ्यूजनिस्ट. Among his various contributions in field of anthropology, the first contribution by him is the longest anthropological fieldwork in native language. Means he was the first anthropology who did fieldwork in native language, and he was more thorough field worker, and he stayed for the longest time in the field than any anthropologist. Means उससे पहले कोई भी दूसरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट इतने लंबे समय तक फील्ड में उन्होंने बिताया नहीं था और बहुत लंबे लंबे फील्ड वर्क उन्होंने किए. मीन्स 2 ट्रिप उन्होंने ट्रोवांड आइलैंड पर की 1915 to 16 वन ट्रिप एंड देन 1917 to 18 सेकेंड ट्रिप. तो ये एक बहुत लंबा समय था जो ट्रोवांड आइलैंड पे उन्होंने, और बहुत सारी बुक्स जो उनकी वो ट्रोवांड आइलैंड पे उनका जो फील्ड वर्क हुआ उसी पर बेस्ड है. और उन्होंने 6 साल तक ऑस्ट्रेलिया में वो रहे, जिसमें कि 3 एक्सटेंसिव ट्रिप्स जो है न्यूजीनिया में, 1 महलू में और 2 ट्रोवांड आइलैंड में. तो 6 years वो ऑस्ट्रेलिया में स्टे किए, जिसमें 3 New 1 to Malu and 2 to Rwanda Island. And he was the first who stayed longer during the fieldwork than any other anthropologist. तो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था फील्ड वर्क में वो था कि उन्होंने नेटिव लैंग्वेज में सबसे पहले फील्ड वर्क करना स्टार्ट किया. उसके पहले किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने नेटिव लैंग्वेज में फील्ड वर्क नहीं किया था, and he was the first who did field work in native language. And he viewed that goal of all field work is to grasp the native point of view. Means if an anthropologist learns the native language, then he can easily grasp the native point of view, and to grasp the native point of view should be main goal of the all the anthropologists or all the field worker. तो ये मानना था मेलिनोव्स्की का. और ही लिव्ड लाइक ए नेटिव इन फील्ड वर्क. वो फील्ड वर्क में जब गए तो नेटिव्स की तरह ही उन्होंने लाइफ वहां पर बिताई. मीन्स जिस कम्युनिटी के साथ रहे, मीन्स ट्रोवांड आइलैंड में रहे, तो उन्हीं के लोगों की तरह वो रहना सहना और उनकी तरह खाना सारा कुछ वो नेटिव की तरह करते थे. एंड ही सजेस्टेड दैट ऑल रिसर्चर्स मस्ट डू फील्ड वर्क इन नेटिव लैंग्वेज, use participant observation technique for data collection, and must write ethnographic diary. ethnographic diary पर उन्होंने बहुत फोकस किया. उन्होंने खुद एक फील्ड डायरी लिखी थी जो बाद में उनके मरने के बाद उनकी वाइफ ने उसको एक बुक के रूप में पब्लिश कराया, डायरी इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ ट्रुथ. तो ये जो है वो उनकी डायरी थी. तो इसीलिए उन्होंने एथनोग्राफिक डायरी पर, मीन्स फील्ड के दौरान जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते थे वो सब वो फील्ड डायरी पर लिखते. तो वो उनका कहना था कि सभी रिसर्चर्स को एथनोग्राफिक डायरी जरूर लिखना चाहिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए. मीन्स
मीन्स फील्ड वर्कर रोज उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके उनकी नेटिव लैंग्वेज को सीख कर और नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ग्रैस्प करना चाहिए किसी भी फील्ड वर्कर को, एंड देन वो रियल डेटा जो है कलेक्ट होगा। एंड ही ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ इन्फॉर्मेंट्स ड्यूरिंग द फील्ड वर्क। तो उन्होंने फील्ड वर्क के दौरान जो फील्ड इन्फॉर्मेंट्स का रोल होता है, जो वहाँ के की इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, उसी सोसाइटी के रहने वाले लोग जो इन्फॉर्मेंट का काम करते हैं, उनका भी जो रोल है फील्ड वर्क में, उस पर भी उन्होंने emphasize किया उसको, and he claimed upon the static documentation by the concrete evidence. He was the founder of functionalist approach, and the idea of functionalism was given by Malinowski. He says that in every civilization, every aspect of culture, custom, material, object, idea, belief fulfills some vital function. Means, according to him, culture is a means to for satisfaction of human needs. उनके अकॉर्डिंग था कि कल्चर की कोई भी पार्ट हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी ट्रेट हो, वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। So culture as a whole is a mean for satisfaction of human needs, is an interrelated integrated system of the arrangement in which different parts of the elements of culture performs different functions which are interrelated, interdependent on each other. तो उनके अकॉर्डिंग कल्चर में डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर एक दूसरे से आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, और इसी अरेंजमेंट को हम कल्चर कहते हैं। और कल्चर का हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट, हर एक एलिमेंट जो कल्चर के हैं, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन की मदद से फुलफिल होता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं कल्चर में, सोसाइटी में, और वो उन जो है फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी का या कल्चर का सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस जो है वो हो पाता है। नहीं तो कोई भी या सोसाइटी या कल्चर एक्सिस्ट नहीं करेगा इफ देयर इज नो फंक्शन। तो ऐसा मानना था उनका कि फंक्शन होगा तभी सोसाइटी सरवाइव कर पाएगी, ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर पाएंगे, और उनके द्वारा जो समाज है वो सरवाइव कर पाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल in fulfilling the needs of human being and the society as a whole, and culture is a means for satisfaction of human needs. Each and every aspect of culture has a function and they are interrelated and interdependent on each other. तो कल्चर के हर एक एस्पेक्ट जो है या हर एक पार्ट जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है, और चेंज इन वन एस्पेक्ट और चेंज इन वन ट्रेट ऑफ कल्चर जो है वो सबको इफेक्ट करता है। अगर उसमें कोई चेंज आता है तो कल्चर एज ए होल पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। Institutions satisfy the needs of human societies as a whole, and culture is a partial activity of two total activity of which it is a part. Concept of culture, first in 1931 and later in 1944 in his book Scientific Theory of Culture. Scientific Theory of Culture book जो कि 1944 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी कल्चर की। कल्चर इज an integrated whole which consists of artifacts, goods, technical process, ideas, habits and values. Means according to him culture is consist of both material and non-material culture traits. तो उनके अकॉर्डिंग कल्चर में मटेरियल ट्रेड्स भी होते हैं, नॉन मटेरियल ट्रेड्स भी होते हैं, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस मींस टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हो सकते हैं, या गुड्स या टूल्स, ये सारे कुछ क्या है, मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के। और आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज, दीज आर द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो कल्चर कंसिस्ट ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, एंड in other terms, we can say that it consists of goods, artifacts, technical process, ideas, habits, and values. And this definition was given by him in his book Scientific Theory of Culture in 1944. He defined that culture as a mean to satisfy human needs. जैसा कि मैंने पहले बताया कि कल्चर एक साधन का काम करता है, मीन्स ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कल्चर एक मीन्स का काम करता है। कल्चर के द्वारा ही हम अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। It's an instrumental reality that comes in existence to satisfy needs of needs. कल्चर का ओरिजिन ही इसीलिए हुआ है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, ऐसा मानना था मैलिनोव्स्की का। तो अगर हम प्री हिस्ट्री में जाएं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग
सबसे पहले जो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और जो होमो सेपियंस की स्थिति में आया, उसके पहले वो होमो इरेक्टस और फिर देन होमो हैबिलिस निएंडरथालस एंड देन होमो सेपियंस। ये जो धीरे धीरे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, उसी के साथ साथ कल्चरल इवोल्यूशन भी होता गया। और तो जो शुरुआत में जो ह्यूमन बीइंग थे, जैसे कि होमो इरेक्टस मैन था, उसने सबसे पहले टूल बनाना सीखा और उसके बाद धीरे धीरे कल्चर भी इवॉल्व होता गया। मीन्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ साथ कल्चर भी इवॉल्व होता, और टूल्स जो बनाया वो उसकी कुछ नीड्स को पूरा करने के लिए। तो टूल मेकिंग वाज द फर्स्ट, जो कल्चर का जो सबसे पहला शुरुआत माना जाए वो टूल मेकिंग से स्टार्ट होता है। और जो फर्स्ट आर्टिफैक्ट था, दैट वाज टूल व्हिच वाज मेड बाय मैन टू सेटिस्फाई हिज बेसिक नीड्स ऑफ हंगर। मीन्स हंगर को पूरा करने के लिए उन्हें टूल्स बनाया होगा। फिर धीरे धीरे उनकी नीड्स बढ़ती गई होंगी और उन्हें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ जो डिफरेंट नीड्स को पूरा करने लगे। तो इसी तरह मैलिनोव्स्की का मानना है कि कल्चर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी है, इट्स अ मीन टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड सोसाइटी एज ए होल। एंड कल्चर कम्स इन एग्जिस्टेंस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ मैन। कल्चर का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ मैन। मीन्स मैन की डिफरेंट नीड्स को, बेसिक नीड्स, डिराइव्ड नीड्स, ही क्लासिफाइड नीड्स इनटू 3: बेसिक, डिराइव्ड एंड इंटीग्रेटेड नीड्स। तो इन डिफरेंट नीड्स को पूरा कौन करता है? कल्चर, एंड थ्रू द इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस की मदद से सेटिस्फाई होता है नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी। Theory of cultural integration. He gave the theory of cultural integration, and this theory says that cultural traits are interrelated, interconnected to each other. Hence, they should be studied in integrated whole, not in isolation. Means cultural traits क्योंकि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से related हैं, interdependent है, interconnected है, and that is why they should be studied integrated whole. उनको अलग अलग नहीं स्टडी करना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको एक साथ स्टडी करना चाहिए। Here is a picture of Indian culture. Indian culture में डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स हो सकते हैं। उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, म्यूजिक है, डांस है, योगा है, फिलोसफी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेचर मीन्स यहाँ पर एनिमल्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज, कस्टम, सिंबल्स, रिचुअल्स, सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो all these cultural traits or the elements of culture are interrelated or interdependent on each other. थ्योरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन यही कहता है कि हमें सारे कल्चर ट्रेड्स, क्योंकि वो आपस में इंटररिलेटेड और इंटरकनेक्टेड हैं, तो उन्हें हमें एक साथ स्टडी करना चाहिए। एंड ऑल दिस कल्चर ट्रेड्स प्रोवाइड द इंटीग्रिटी टू द कल्चर एज ए होल, कल्चर एंड सोसाइटी एज ए होल। ये इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं और सबका फंक्शन, सब अपना अपना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स समाज में हर एक कल्चर ट्रेड का अपना अपना एक फंक्शन है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में वो कुछ ना कुछ फंक्शंस करते हैं और वही उसी की वजह से सरवाइव होता है कल्चर। तो कल्चर को या ह्यूमन बीइंग्स को, सोसाइटी को जीवित रखने के लिए, उनके सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के लिए कल्चर की में फंक्शनिंग जरूरी है। और फंक्शनिंग की वजह से ही आपस में सब इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। एंड ऑल द कल्चर ट्रेड शुड बी studied as integrated whole, not in isolation. तो उन सबको अलग अलग नहीं स्टडी करना चाहिए बल्कि एक साथ स्टडी करना चाहिए। एंड दिस वाज द theory of cultural integration by Malinowski. What is an institution? According to Malinowski, an institution is the concrete isolate of organization or the group of people united in common task bound to determine portion of the environment, building together to some technical apparatus and obeying a body of rules. तो ये डेफिनेशन उन्होंने दी इंस्टीट्यूशन की, कि इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन का एक आइसोलेट है, एक कॉन्क्रीट आइसोलेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर कुछ कॉमन टास्क करते हैं। मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूशन, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी, एंड ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कॉमन टास्क मीन्स करते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। इस ग्रुप ऑफ पीपल होना सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसको चलाने के लिए।
वहाँ लोगों की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, देन कुछ टेक्निकल apparatus होते हैं जिनकी मदद से वो कुछ functions करते हैं, and they obey a body of rules. So these three things are important for running any institution: group of people, technical apparatus and body of rules, जिसको कि norms भी कहते हैं. तो norms को फॉलो करते हुए कुछ टेक्निकल अपरेटस को यूज करके एक निश्चित एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग एक कॉमन टास्क को परफॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको पर्सनल कह सकते हैं, और तब एक इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है. तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो नीड्स पूरी होती है ह्यूमन बीइंग की और सोसाइटी की, और इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस का जन्म भी होता है, टू सेटिस्फाई सर्टेन नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग or society as a whole. So biological needs of man are satisfied with the help of these institutions, and these help in maintaining the survival of culture and social integrity. Culture is integral composed of partly autonomous and partly coordinated institutions. तो culture में partly autonomous और पार्टली कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशंस दोनों मिलकर कल्चर को सरवाइव मीन्स कल्चर के एग्जिस्टेंस में जरूरी होते हैं, और कोई भी कल्चर में पार्टली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं और पार्टली कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं. Charter of institution, the system of values for which people organize themselves. तो चार्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंस्टीट्यूशन का जो बेस है उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं: पर्सनल, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल; नॉर्म्स, जो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस; एंड मटेरियल अपरेटस, जिसको कि वो यूज करेंगे टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज, एंड देन दैट लीड्स टू फंक्शन. So this is the charter of institution that includes personnel, norms and material apparatus. The group of people or personnel, by following certain norms or rules with the help of material apparatus, or by using material apparatus to satisfy certain kinds of needs, perform certain activities, and that ultimately lead to function. तो ये जो है आइडिया था इंस्टीट्यूशन का, या चार्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो दिया मैलिनोव्स्की ने. फॉर एग्जाम्पल, फैमिली इज ए इंस्टीट्यूशन. फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, मोस्ट बेसिक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है किसी भी समाज में, क्योंकि एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है. किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपको फैमिली एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जरूर मिलेगी. तो दैट्स व्हाई इज द यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन. तो फैमिली में बहुत सारी नीड्स पूरी होती है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि हमारा फूड है, मीन्स हंगर, थर्स्ट, और रिप्रोडक्शन, शेल्टर, प्रोटेक्शन, लव, केयर, अफेक्शन. साइकिक नीड्स जो होती हैं, लव, केयर, अफेक्शन, और जो मेंटल सपोर्ट है, और इकोनॉमिक सपोर्ट भी फैमिली से मिलता है, और मॉरल सपोर्ट भी मिलता है. तो तमाम तरीके के जो नीड्स है, हमारी बेसिक नीड्स, derived needs, all these are fulfilled by this single institution, family. तो फैमिली का जन्म ही ऐसे हुआ कि अर्ली जो मैन थे वो पहले सॉलिटरी हंटर्स थे, और फिर जब उनको पता चला कि वो धीरे धीरे कि उनको एक ग्रुप बनाकर रहना चाहिए, और फिर ग्रुप में वो किनशिप टाइज में बंधे, और मैरिटल टाइज एंड देन ब्लड टाइज. तो इस तरह फैमिली का जन्म हुआ, और इस तरह फिर फैमिली के लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे. जैसे वीमेन का अलग रोल होता था, फादर का अलग रोल होता था. मीन्स हंटिंग सीन जब होती थी तो उसमें माँ बच्चों का केयर करती थी, एंड फादर हंटिंग करने जाते थे. जैसा कि आज के फैमिली में अगर देखें तो माँ अभी भी बच्चों का, मोस्ट ऑफ द जो मदर्स हैं वो बच्चों का हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, चाइल्ड केयर में रहती हैं, एंड फादर बाहर जॉब करते हैं. तो इस तरह वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी देते हैं बच्चों को, मेंटल सपोर्ट भी देते हैं, मॉरल सपोर्ट देते हैं, उनको लव, केयर, अफेक्शन देते हैं, और बच्चों को इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है, जिसे पढ़ाई करना है, एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट मिलता है. आपस में वो स्ट्रेंथ जो फैमिली की है वो आपस में एक दूसरे के काम से जुड़ी होती है. मीन्स हर किसी को मीन्स फैमिली में अपना अपना एक स्टेटस होता है, और उनको उसके अकॉर्डिंग उनको रोल परफॉर्म करते हैं. तो बाय परफॉर्मिंग सर्टेन रोल्स एंड बाय ओबेइंग सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स. तो किसी भी इंस्टीट्यूशंस में ग्रुप ऑफ पीपल होना जरूरी है,
एंड सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, मीन्स फैमिली में भी तमाम रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं, मीन्स बच्चों को बड़ों का रिस्पेक्ट है, ओबे करना होता है, बड़ों को बच्चों का केयर रखना पड़ता है। तो इस तरह हम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एक इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है, एंड दैट इंस्टीट्यूशन फुलफिल्स आवर बेसिक एंड डिराइव्ड नीड्स। तो फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है, या फाउंडेशन कह सकते हैं सोसाइटी का होता है फैमिली, जिससे कि तमाम दूसरे इंस्टीट्यूशन जुड़े रहते हैं और बहुत सारी हमारी बेसिक नीड्स फैमिली से ही पूरी हो जाती है। तो इस तरह फैमिली, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपुल टुगेदर by using certain material apparatus, जैसे कि फैमिली आपको शेल्टर या प्रोटेक्शन भी देती है, तो वहाँ पर एक हाउस होता है, फूड के लिए आपके तमाम फूड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुकिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इस तरह तमाम ऑब्जेक्ट्स, या सोने के लिए पहनने के लिए क्लॉथ, तो इस तरह तमाम ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल को हम गुड्स को यूज करके आपस में पर्सनल कुछ रूल्स को परफॉर्म करके कुछ एक्टिविटीज करते हैं, एंड दैट लीड टू द फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह फैमिली एक इंस्टीट्यूशन का रोल परफॉर्म करती है। स्कूल इज अनदर इंस्टीट्यूशन। स्कूल इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्कूल के द्वारा हमारी कौन सी नीड पूरी होती है? डेराइव नीड, दैट इज द एजुकेशनल नीड। अब बच्चे घर में जो तमाम नीड्स उनकी पूरी होती है, बट बाद में आगे समाज से जुड़ने के लिए और आगे कुछ अचीव करने के लिए, अचीव स्टेटस के लिए उनको स्कूल जाना होता है, और वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसमें कि टीचर्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आता है और स्टूडेंट्स आते हैं। ये टुगेदर दे परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज, मीन्स एजुकेशनल एक्टिविटीज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और ये सारा कुछ करते हुए जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं, और फिर जो है वो मीन्स इंस्टीट्यूशन जीवित रहता है ये नीड्स के थ्रू, और बच्चे भी आगे प्रोग्रेस करते हैं, कुछ स्टेटस अचीव करते हैं। तो इस तरह स्कूल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन, इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसी तरह मार्केट एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है। तमाम इस तरह इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज, किनशिप और ऑल्सो एजुकेशनल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Theory of need. This is also one of the contribution given by Malinowski. And the theory of need was given by Malinowski in his book Scientific Theory of Culture and Other Races. And this book was published after his death in 1944. That posthumous book है, और ये आइडिया थ्योरी ऑफ नीड का पहले ही डेवलप हो गया था, बट बुक वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, Scientific Theory of Culture and Other Races. And this book he gave theory of need. And according to him, there are three basic type of needs: primary, basic और the biological needs, जो कि human being को as a biological individual वो कुछ basic या primary needs होती ही है। Then second type of needs are instrumental or the derived needs, जो कि इन primary या basic needs को से जुड़ी होती हैं, इससे ही निकलती हैं, और इन्हीं को instrumental derived needs होते हैं, या इन्हीं को पूरा करने में नई नीड्स डेवलप, जिसको कि डेराइव नीड्स कहते हैं। एंड द थर्ड काइंड ऑफ नीड्स आर इंटीग्रेटिव नीड्स which help in integrity of the society. तो इस तरह तीन तरीके की नीड्स उन्होंने बताई, एंड अकॉर्डिंग टू हिम नीड्स आर द सिस्टम ऑफ कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप एंड ऑर्गेनिज्म। तो नीड्स कुछ सिस्टम ऑफ कंडीशंस होती हैं जो ग्रुप और ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती हैं, एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल आर सेटिस्फाइड थ्रू कल्चरल इंस्टीट्यूशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही नीड्स का फुलफिलमेंट होता है। Primary need, food, hunger, thirst, or reproduction is also a primary need, shelter, protection, love, care, affection. All these are the primary needs. Means as a biological individual, human being has these primary needs. तो बेसिक नीड्स जो प्राइमरी नीड्स होती हैं, जिसमें कि मेटाबॉलिज्म है, जो कि फूड रिक्वायरमेंट है, और तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इंसान को फूड की बहुत जरूरत होती है, हंगर थर्स्ट को पूरा करने के लिए। तो ये these are the basic, one of the basic need. Then reproduction is also another basic need. And body comforts means protection के लिए, या बाहर के heat cold environment के लिए, या
रहने के लिए। तो इस तरह भी बॉडी कंफर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर ह्यूमन बीइंग। देन सेफ्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर ह्यूमन बीइंग। मूवमेंट, एंड क्योंकि वो स्टेटिक नहीं रह सकता तो मूवमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिक नीड। ग्रोथ इज ऑल्सो, एंड हेल्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स। तो ऑल दीज आर द बेसिक नीड्स, और इनके जो रेस्पॉन्सेज होते हैं, मीन्स मेटाबॉलिज्म को पूरा करने के लिए एक कॉमिसेरिएट इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है, जो इनकी फूड से जुड़ी हुई सारी जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करता है। इसमें कि फूड प्रोडक्शन होता है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड देन फूड का कुकिंग के लिए डिफरेंट मटेरियल अपैरेटस, एंड देन फूड इनटेक होता है। तो ये कॉमिसेरिएट का जन्म होता है, मीन्स कल्चरल रिस्पॉन्स है टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसी तरह कल्चरल रिस्पॉन्स किनशिप जो है वो जन्म लेता है रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। तो रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक नीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, एंड देन टू फुलफिल दिस नीड किनशिप टाइज डेवलप होती हैं। मैरिटल टाइज के द्वारा हस्बैंड एंड वाइफ का टाइज बनता है, एंड देन रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन जो बेसिक नीड है वो फुलफिल होती है। इसी तरह बॉडी कंफर्ट्स है, उसको करने के लिए शेल्टर, मीन्स वो हीट कोल्ड एनवायरनमेंट या इस तरह तमाम चीज़ों से बचने के लिए शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो उससे हाउस जो है एक इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है, मीन्स हाउस का मतलब एक जो एक मटेरियल कल्चर का पार्ट है। तो शेल्टर एक इंस्टीट्यूशन है, और मटेरियल कल्चर में हाउस और उससे जुड़े हुए तमाम गुड्स जो बॉडी कंफर्ट्स की नीड्स को पूरा करते हैं। इसी तरह सेफ्टी एक बेसिक नीड है जिसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी होता है, एंड प्रोटेक्शन को पूरा मीन्स कल्चरल रिस्पॉन्स से जुड़े हुए तमाम मटेरियल गुड्स जो आपको प्रोटेक्ट करने में सहायक होते हैं। इसी तरह मूवमेंट के लिए एक्टिविटीज, ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग, एंड हेल्थ के लिए हाइजीन, मीन्स तमाम क्लीनिंग एंड ये इस तरह एक्टिविटीज जो हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह जो बेसिक नीड्स हैं उनसे जुड़े हुए कल्चरल रिस्पॉन्सेज, और इस तरह इंस्टीट्यूशंस का जन्म होता है टू फुलफिल दीज बेसिक नीड्स। तो जैसा कि आपने बताया कि प्राइमरी नीड्स है, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एज अ बायोलॉजिकल इंडिविजुअल हैव दीज प्राइमरी नीड्स, and then some derived needs which are related to fulfill these primary needs, जिसमें कि फैमिली, किनशिप, मैरिज जो आपस में इंटर रिलेटेड है। ये तीन इंस्टीट्यूशन, इस तरह इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिराइव नीड पूरा करते हैं, मीन्स ये डिराइव नीड्स से जुड़े हुए हैं और ये फुलफिल करते हैं हमारी प्राइमरी नीड्स को। इसी तरह थर्ड काइंड ऑफ नीड जो रिलीजन, आर्ट, साइंस, मैजिक, जो नॉलेज है, लॉ है, ये सभी क्या है, इंटीग्रेटिव नीड है। ये आपस में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, सोशल कोहेशन के लिए जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई these are termed as integrative need. Theory of law given by Malinowski, and he viewed that there are three types of norms: religious, customary, and legal norms. And legal norm is termed as law by him. Legal norms जो कि enforced होते हैं organized definite social action के द्वारा, उसी को उन्होंने law कहा। एंड इन हिज बुक उन्होंने कहा कि सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सीरीज ऑफ नॉर्म्स होते हैं विच आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सैंक्शंस, एंड देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉर्म्स: religious, customary, and legal, and this legal norms is termed as law by him. And in his book Crime and Custom in 1926, he distinguished two types of law: civil law and criminal law. उन्होंने अपनी बुक क्राइम एंड कस्टम जो कि 1926 में पब्लिश हुई थी 1926 में, उसमें उन्होंने दो तरीके की लॉ बताई, एक सिविल लॉ है, दूसरे क्रिमिनल लॉ है। सिविल लॉ मीन्स जो सोशल मैकेनिज्म से उनको जुड़े हुए, मीन्स उनको रेगुलेट करते हैं, सेट ऑफ रूल्स, जिसमें कि पर्सनल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, ये सारे कुछ आते हैं, इन सबको रेगुलेट करते हैं जो सेट ऑफ रूल्स, उन्हीं को हम सिविल लॉ कहते हैं। और ये तो सामान्य रूप से जो समाज में आपस में एक दूसरे से जो हमारा रिलेशन होता है, संबंध होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस या इंटरपर्सनल रिलेशंस, उनको हम सिविल लॉ, जो उसमें जो सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करते हैं उसको सिविल लॉ कहते हैं। और क्रिमिनल लॉ होता है सेफ्टी अरेंजमेंट्स के लिए, मीन्स सभी चीजें व्यवस्थित रूप से चलती रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे समाज में, और उसको बनाए रखने के लिए क्रिमिनल लॉ होती है। तो क्रिमिनल लॉ का जब ब्रीच, मीन्स ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ जो है वो उसमें कुछ आपको पनिशमेंट्स मिलते हैं। सिविल लॉ के केस में ऐसा नहीं है, पर क्रिमिनल लॉ में
फिक्स्ड कुछ पनिशमेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स दे प्रोटेक्ट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड पर्सनालिटी. दीज आर द सेफ्टी अरेंजमेंट्स टू पुट थिंग अपार्ट, और द रूल्स प्रोटेक्टिंग लाइफ, प्रॉपर्टी एंड पर्सनालिटी. और इसमें मर्डर भी आ सकता है, थेफ्ट या मैजिक के, इन सब के अगेंस्ट में अगर जो है कुछ ऐसा होता है समाज में, मर्डर, थेफ्ट या मैजिक या इसके अलावा और भी चीजें, तो उसमें क्रिमिनल लॉ अप्लाई की जाती है. एंड ही फाउंड दैट अमंग मैलूज जो आइलैंड पे उन्होंने काम किया था 1 साल, तो उसमें रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ उनको दिखा, पता चले कि वहां पर रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ थी, जिससे कि लोग वहाँ के रहने वाले लोग मर्डर, थेफ्ट एंड मैजिक को डील करते थे. प्रिमिटिव लॉ हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर, कोहेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन सैवेज सोसाइटीज. तो सैवेज लाइफ में ये प्रिमिटिव लॉ थी, मीन्स और बाद में जब लोग ग्रुप होकर रहने लग गए, तो आपस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए या समाज में संगठन बनाने के लिए कुछ लॉ बनाई गई वहाँ के लोगों के द्वारा, चीफ के द्वारा. और फैमिली जो है पहला इंस्टीट्यूशन है जिसमें लॉ मीन्स जो चीफ होता है फैमिली का, जैसे कि फादर या मदर, वो डिसीजन मेकिंग पावर या कुछ सर्टेन रूल्स वो बना देते हैं और उसी को सारे मेंबर्स अप्लाई करते हैं. उसी तरह समाज के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको कि हम फॉलो करते हैं टू मेंटेन द ऑर्डर, कोहेशन एंड यूनिफॉर्मिटी. तो ऐसा ही सैवेज लाइफ में हुआ कि सबसे पहले जो प्रिमिटिव लॉ बनाई गई वो समाज में कोहेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड लॉ ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए हमें हेल्प करती थी. अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंटल नीड. ये डराइव नीड है, इंस्ट्रूमेंटल नीड है, जो सेटिस्फाई करती है एंड विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. मीन्स ह्यूमन सर्वाइवल को के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, और जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. तो लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंटल नीड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन फॉर द सर्वाइवल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. तो ह्यूमन सर्वाइवल के इसका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है. एंड ही फर्स्ट गेव 4 मीनिंग्स ऑफ लॉ. उन्होंने पहले 4 मीनिंग्स दी लॉ की, बाद में उन्होंने अपनी बुक फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन में 2 टाइप्स ऑफ लॉ बताई, लॉ ऑफ नेचुरल डिटर्मिनिज्म एंड लॉ ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी. तो पहले उन्होंने बताया था 4, लॉ ऑफ कल्चरल डिटर्मिनिज्म, रूलिंग नेटिव कंडक्ट, लॉ ऑफ ऑर्डर मेंटेनेंस एंड लॉ व्हेन ब्रीच अकर्स. तो लॉ ऑफ ऑर्डर मेंटेनेंस एंड लॉ व्हेन ब्रीच अकर्स को उन्होंने लॉ ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी बना दिया, एंड लॉ ऑफ कल्चरल डिटर्मिनिज्म एंड लॉ ऑफ रूलिंग नेटिव कंडक्ट को लॉ ऑफ नेचुरल डिटर्मिनिज्म में रखा. तो these are the 2 sets of laws which were given by him in his book 19 Freedom and Civilization in 1947. His contribution on magic, religion, myth, art and science. According to him, all these are integrative needs. मैजिक, रिलीजन, मिथ, आर्ट, साइंस, ये सभी उनके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिव नीड्स से जुड़े हुए थे. एंड ये इंटीग्रेटिव नीड्स ही हैं जो समाज में लोगों को एक रखने का काम करती हैं. सोशल कोहेशन या इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है मैजिक, रिलीजन, मिथ्स, आर्ट्स एंड साइंस, एंड दीज आर द इंस्टीट्यूशंस which fulfill the integrative needs. So according to him, these are the highest and most derived imperative of the human culture and they are integrative needs, third order of imperatives. तो पहला उन्होंने basic needs बताया, दूसरा derived needs या instrumental needs बताया, and the third kind of needs are integrative needs, जिसको कि उन्होंने highest and most derived imperative of human culture बताया, जिसमें कि first है science. Science is based on facts, deals with the natural world, जो भी नेचर में होता है उसको ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है और फैक्ट्स पर बेस्ड होता है. एंड ऑर्गेनाइज इंटीग्रेट द ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज को ये इंटीग्रेट करने का काम करता है. इसी तरह रिलीजन इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन which fulfills the integrative need. Yeah, it means to free the human mind from fears and emotions. जब हमें fear होता है, हमारे emotional जो नीड होती है उसको पूरा करने का काम रिलीजन करता है. इट गिव्स अस मेंटल सपोर्ट, ये साइकिक सपोर्ट देता है. तो साइकिक नीड भी होती है इंसान की एज ए ह्यूमन बीइंग. जो हम इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, फियर होता है, हेट्रेड होता है, और लव, फियर, हेट्रेड और जो भी और दूसरे इमोशंस डेवलप होते हैं,
उन सभी को पूरा उससे ह्यूमन बीइंग को फ्री करने का काम रिलीजन करता है। ये हमें एक सपोर्ट देता है, एक साइकिक सपोर्ट देता है, जो बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन सोल, और इस तरह हम को एक सपोर्ट मिलता है। मीन्स लोनलीनेस से हम दूर होते हैं और हमें फिर और दूसरे तरीके के इमोशन से हमको फ्री करता है रिलीजन। इट प्रमोट सोशल सिक्योरिटी एंड कोहेशन। Then art is also a kind of integrative institution, or it fulfills our satisfies our carving of human. तो ये हमारी नीड्स को पूरा करता है और ह्यूमन बीइंग को हमेशा अपने जो कुछ उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं उसको वो आर्ट के माध्यम से दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। Magic is also a kind of integrative need, and it's a body of purely practical acts. इसमें कुछ acts करते हैं और involves 4 elements. मैजिक जब भी करते हैं तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं उसके, स्पेल, मटेरियल, टेक्निक या मेथड एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो स्पेल होता है जैसे ये कुछ मंत्र वंत्र वो यूज करते हैं जो मैजिशियंस होते हैं। मटेरियल मीन्स कुछ मटेरियल apparatus को यूटिलाइज करते हैं, मीन्स कुछ अनाज या कुछ चीजें, वाटर या एनीथिंग, जो छड़ी उड़ी कुछ तमाम चीजें जिससे वो जादू करते हैं, वो ही सारा कुछ मटेरियल में आ जाता है। मंत्र हो गया। देन टेक्निक या मेथड, कुछ एक निश्चित टेक्निक या मेथड होता है, वन बाय वन उसको अप्लाई करते हैं वो। और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, तो इमोशंस जो है उनके चेहरे पर कुछ एंगर का इमोशन या थोड़ा सा शांत इमोशन हो सकता है, या तमाम तरीके के उनके अंदर ऊपर इमोशंस हो सकते हैं म्यूजिशियन के ऊपर। तो किसी भी मैजिक एक्टिविटीज के ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, स्पेल, मटेरियल, टेक्निक एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। एंड मैजिक इज इमिटेटिंग साइंस। साइंस में जैसे कि हम नेचुरल जो फिनोमेना होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और फिर वो लैब में हम टेस्टिंग करते हैं, देन वी कम टू सर्टेन कंक्लूजन एंड थ्योरी डेवलप होती है। लेकिन मैजिक क्या होता है, वो साइंस को इमिटेट करता है। तो यहाँ पर हम नेचर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसको समझते नहीं, उसको जस्ट एज सच इमिटेट कर देते हैं, और इसीलिए मैजिक को इमिटेटिंग साइंस कहा गया। He classified magic into 2 types according to Malinowski. There are 2 types of magic: white magic and black magic. As name suggests that white magic is for welfare of others. ये सोशल एक्सेप्टेंस है इसका, क्योंकि ये लोगों का कल्याण में उसमें हेल्प करता है, लोगों को फायदा पहुंचाती है व्हाइट मैजिक। जैसे कि किसी को बुखार हो गया या कोई किसी परेशानी में है तो उसको मैजिशियंस जो है उसको दूर करने का काम करते हैं अपने मैजिकल राइट से। तो इसलिए व्हाइट मैजिक जो है वो ह्यूमन बीइंग को डेंजर या अनसर्टेनिटी से फ्री करता, मीन्स सेव करता है, और वेलफेयर के लिए यूज होता है, लोगों की मदद करने के लिए यूज होता है। और या जो मैजिशियंस जैसा कि जादूगर अपना तमाम जादूगर टाइम टाइम पे उनके कुछ इवेंट्स होते हैं और वो लोगों को मिराकल एक्ट सिखाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो ये व्हाइट मैजिक 2 तरीके की हो सकती है, या तो लोगों को किसी मुसीबत से बचाना, और या तो लोगों के मनोरंजन के काम में जब यूज होता है और तमाम मैजिकल एक्टिविटीज दिखाते हैं, मिराकल एक्ट दिखाते हैं। तो व्हाइट मैजिक 2 तरीके की होती है, और लोगों का इसका सोशल एक्सेप्टेंस में सोशली एक्सेप्टेड होता है, लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो ये व्हाइट मैजिक हो गई। एंड नेक्स्ट टाइप इज of magic is black magic, that's also known as love magic, and it is related to harmful activities. यहाँ पर जो मैजिशियंस होते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट हैज नो सोशल एक्सेप्टेंस, ये सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, लोगों के द्वारा स्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत है। तो लोग इसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन जो मैजिकल राइट्स करते हैं उनके द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मीन्स जो कॉन्टेजियस मैजिक, जैसा कि फ्रेजर ने बताया था कि वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, तो उसका भी ब्लैक मैजिक में ही इस्तेमाल होता था कि लोगों के कुछ ऑब्जेक्ट्स या उनसे जुड़े हुए चीजें जब हम यूज करेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये एक मैजिक का एक टाइप है ब्लैक मैजिक, जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और ये फ्रस्ट्रेशन, हैट्रेड या एंगर से निकलता है।
तो इन सब को पूरा करने के लिए मीन्स हैट्रेड, एंगर और फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा पाने के लिए लोग इस तरह की हार्मफुल एक्टिविटीज में लिप्त हो जाते हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, पुट अदर्स इन ट्रबल एंड आल्सो डेथ तक हो जाती है इन मैजिकल एक्टिविटीज के द्वारा। ये दो टाइप का होता है, सॉर्सरी एंड विचक्राफ्ट। सॉर्सरी में मंत्र तंत्र पढ़ते हैं, मंत्र तंत्र विद्या से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, और विचक्राफ्ट में भूत प्रेत डायन इस तरह का एग्जाम्पल्स हैं कि विचक्राफ्ट। तो इस तरह हम जो कहते हैं कि अभी भी तमाम सोसाइटीज में जो ट्राइबल कम्युनिटीज या और भी दूसरे कम्युनिटीज में विचक्राफ्ट और सॉर्सरी अभी भी किया जाता है, और लोग इस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और ये भी एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है उनकी। एक कुछ मैजिशियंस होते हैं जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह की तो जो समाज में जैसे कि वैद्य होते हैं, शैमन, तो शैमन भी तमाम इस तरह के जो है मैजिक उनको आता है जो वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। लोगों को किसी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाने के लिए, तो वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन ब्लैक मैजिक जो होता है वो अक्सर ये इनके द्वारा किया जाता है, और जिसके दो टाइप्स होते हैं, सॉर्सरी एंड विचक्राफ्ट। और वो जो गलत उससे आशा से लोग करते हैं, और ये मंत्र तंत्र या भूत प्रेत इसमें आते हैं, और इस तरह की विद्या से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। किनशिप स्टडी, his contribution on kinship study, he called kinship terminologies as kinship algebra। उन्होंने kinship algebra कहा kinship terminologies को, जैसे कि मॉर्गन ने भी kinship terminology दी थी। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को उन्होंने किनशिप अलजेब्रा कहा। उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट मस्ट स्टडी नॉर्म्स एंड बिहेवियर व्हिच गवर्न किनशिप टू फंक्शन। उन्होंने फंक्शनल अप्रोच पे ध्यान दिया कि किनशिप टर्मिनोलॉजी पे नहीं बल्कि उसके फंक्शन पर, कि किनशिप का समाज में फंक्शन क्या है, व्हाट फंक्शन इज मेड बाय किनशिप। तो फंक्शन क्या करता है किनशिप, या कौन से ऐसे रूल्स एंड नॉर्म्स हैं जो गवर्न करते हैं किनशिप को फंक्शन करने के लिए। तो किनशिप इज अ कल्चरल रिस्पॉन्स टू रिप्रोडक्शन। उनका मानना था कि जो रिप्रोडक्शन है उसी का कल्चरल रिस्पॉन्स है किनशिप। रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक नीड एंड दिस कल्चरल रिस्पॉन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज किनशिप। एंड डील्स विद मैरिज, फैमिली, प्रॉपर्टी, कंडक्ट रूल्स और तमाम दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी किनशिप से जुड़े हुए हैं। इट शुड बी स्टडीड सोशली, कल्चरली, बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। और किनशिप को इन तमाम एंगल से स्टडी करना चाहिए। Thus, Kula exchange is exchange involves two objects. First is the Mowali and Solva. Second is the Solva. The Solva is the red shell necklace and Mowali is the white arm shell bracelets. तो सोल्वा ऑलवेज मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सोल्वा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नॉर्थवर्ड है डायरेक्शन में मूव करता है। मोहाली एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न मोस्ट ये जो है मूव करता है, साउथवर्ड मूव करता है। तो ये देखिए कुला का एक्सचेंज का फिगर है। सोल्वा, ये एस से सोल्वा यहाँ पर फिगर आउट किया गया है, और ये चार कम्युनिटीज हैं ए बी सी डी। और सोल्वा क्लॉकवाइज कर रहा है, मीन्स ए गिव्स सोल्वा टू बी and B gives solva to C and C gives solva to D and D again gives solva to A। तो इस तरह ये रिंग के फॉर्म में सर्कुलर मोशन में लगातार ये एक्सचेंज होता रहता है, और इसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। मीन्स और जो रिटर्न करते हैं गिफ्ट को वो विद इन 1 ईयर या 2 ईयर करते हैं, उसके बाद वो उसकी सीमा नहीं रहती है। तो 1 और 2 ईयर्स में उसको एक्सचेंज को मीन्स रिटर्न करना होता है इन गिफ्ट्स को। और जब ए जो है बी को देता है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मीन सोल्वा का जो रेड शेल नेकलेसेस हैं उनका क्लॉकवाइज जो है एक्सचेंज हो रहा है। अब ए से बी को तो मिला सोल्वा, लेकिन बी क्या देता है ए को, बी देता है मोवाली। बी देता है मोवाली। तो मोवाली क्या है, व्हाइट आर्मशेल ब्रेसलेट्स हैं। व्हाइट आर्मशेल ब्रेसलेट्स, ये ब्रेसलेट्स हैं जो हाथ में पहनी जाती है, और सोल्वा नेकलेसेस हैं गले में पहनने के लिए। तो ये रेड शेल की नेकलेसेस हैं, यहाँ पर शेल्स लगी हुई है इसके कॉर्नर पे। तो ये सोल्वा है। एंड दीज आर ओनली कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, इनका कोई यूज नहीं करते हैं। कम्युनिटी वाले जो चार कम्युनिटीज के बीच में ये एक्सचेंज होता है, इनका कोई यूज नहीं होता। ये एक्सटर्नल सिर्फ एक्सचेंज में यूज होते हैं, और ये आपस में सोशल कोहेशन, यूनिटी, इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं।
तमाम सेरेमनीज होती है इनके फील्ड ट्रिप्स के, मतलब जो इनका ट्रैवल होता है। इसमें जो कुला एक्सचेंज में जो ट्रैवल होता है, इसमें मोर देन 100 माइल्स जर्नी करते हैं ये कैनोस के थ्रू। तो जो कैनो बोट होती है, काइंड ऑफ बोट, उसमें ये ट्रैवल करते हैं। और हमेशा कुला में नियम होता है, कुछ नियम को ही फॉलो करते हैं। मीन्स विद इन 1 ईयर होता है, इनको कंज्यूम नहीं करना, इन ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं करना है, ये नियम होता है। और इसमें मेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, फीमेल्स या बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें वही मेल पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो विलेज में किसी न किसी पोस्ट को ऑक्युपाई करते हैं। फिर उनका समाज में कुछ स्टेटस होता है, वही उसको ऑक्युपाई करते हैं, सारे मेल्स नहीं ऑक्युपाई करते हैं। और इस कुला ट्रेवल को जो गाइड करता है, वो जो विलेज का चीफ होता है, मुखिया होता है, वही गाइड करता है। सभी लोग अपने मन से कोई नहीं करता, तो एक निश्चित नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। चीफ जो है विलेज का गाइड करता है। सारे एक्सपेंसेस मीन्स ट्रैवल के दौरान जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं जर्नी में, वो सब भी वही चीफ ही फुलफिल करता है, मीन्स वही देता है वो सारे एक्सपेंसेस। और मेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज जो है वो समाज का दिखाई देता है। मीन्स कोई भी जो गिवर होता है उसका हायर स्टेटस दिखाई देता है दैन रिसीवर, और जो रिसीवर इधर से मवाली दे रहा है तो उसका, तो अपने अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए उनको प्राइड फील होता है, और समाज में उनका एक रुतबा होता है इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर। तो इस तरह जो है ये एक्सचेंज किया जाता है। और इसका एक प्रिंसिपल होता है, once in Kula always in Kula, means once you become a member of Kula exchange, you always become a member of Kula. तो once in Kula always in Kula, and it takes place in ring manner, circular manner, that is why it's also known as Kula ring. इसको Kula ring भी कहते हैं Kula exchange को। और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स का होता है हमेशा एक्सचेंज, सोल्वा एंड मवाली का। सोल्वा का हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मवाली का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से ए गिव्स सोल्वा टू बी एंड बी गिव्स मवाली टू ए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मीन्स साउथवर्ड होता है और ये नॉर्थवर्ड होता है इसका एक्सचेंज। तो इस तरह एक ही आइलैंड के 4 कम्युनिटीज के बीच में हो सकता है ये दो या 4 कम्युनिटीज के बीच में हो सकता है ये कुला एक्सचेंज, या नेबरिंग आइलैंड्स के बीच में भी हो सकता है। मीन्स अक्रॉस द सी नेबरिंग आइलैंड्स के बीच में भी कुला एक्सचेंज हो सकता है। तो कुला एक्सचेंज हमेशा डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में होता है। People of different communities, they exchange these valuable objects, cultural objects of their community, that is Kula and Mawali। एंड कुला एंड मवाली का वो एक्सचेंज करते हैं, इनको यूज नहीं करना है, कंज्यूम नहीं करना है। दूसरे एक्सचेंजेस में जो कंज्यूमेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्सचेंज के, उनको यूज कर लिया जाता है कम्युनिटी के द्वारा। पर यहाँ पर कम्युनिटी कभी भी इन ऑब्जेक्ट्स को अपने इस्तेमाल में नहीं लाती है। तो ये इनके रूल्स होते हैं। और इस तरह ये कुला एक्सचेंज लगातार चलता रहता है रिंग उसमें। और इसको मॉस जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इसको स्टडी किया कुला एक्सचेंज को, और उन्होंने पाया कि दिस कुला एक्सचेंज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ एक्सचेंजेस। एंड इसको उन्होंने गिफ्ट सेरेमोनियल गिफ्ट एक्सचेंज माना। एंड ही स्टेटेड दैट इट हेल्प्स इन सोशल इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर किसी इकोनॉमिक वैल्यू के लिए एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूम करने के लिए या किसी बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा, जस्ट फॉर सोशल इंटीग्रिटी ये एक्सचेंज हो रहा है। और आपस में रिलेशंस को बनाए रखने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन को दूर रखने के लिए, आपस में अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज को, ये एक एक्सचेंज है। एंड दैट इज वाई मॉस ने कहा कि ये इट हेल्प्स इन सोशल इंटीग्रेशन। and it involves more than 100 miles journey through the canoes। and इसमें जो इन दो ऑब्जेक्ट्स के मींस एक्सचेंज के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज होती है वो कैनो मेकिंग होती है। मींस ओल्ड कैनोस का रिपेयरमेंट होता है, नई कैनोस भी बनाई जाती हैं इन ट्रेवल्स के दौरान। और कुछ मैजिकल और रिलीजियस एक्ट्स भी किए जाते हैं, क्योंकि जो मेल मेंबर्स होते हैं जो कुछ पोस्ट को ऑक्युपाई किए रहते हैं वही इसके मेंबर होते हैं। और एक और नियम होता है कि उनको कुछ मैजिकल एक्टिविटीज आना चाहिए, वही तभी वो कुला के मेंबर बन पाते हैं। तो कुछ मैजिकल रिलीजियस एक्ट्स भी वो करते हैं इन के दौरान, और इसीलिए इनको कुला सेरेमोनियल एक्सचेंज कहा जाता है।
अदर एक्सचेंज सिस्टम्स जो मैलिनोव्स्की ने अपने ट्रोबैंड आइलैंड के फील्ड ट्रिप के दौरान दूसरे एक्सचेंज को भी उन्होंने स्टडी किया, और ये है वासी, उरिगुवु सिस्टम एंड पोकाला। वासी exchange system is an exchange of agricultural product yam and fish। तो याम एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और कोस्टल फूड में फिश जो है, तो दो कम्युनिटीज के बीच में एक्सचेंज होता है, कोस्टल विलेजेस और इनसाइड विलेजेस। तो जो इनसाइड विलेजेस हैं उनको फिशिंग करना में प्रतिबंध है, तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं जिसको याम कहा जाता है। और जो कोस्टल साइड में जो विलेजेस हैं वो सिर्फ फिशिंग कर सकते हैं, वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो वो क्योंकि उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जरूरत है, तो वो एग्रीकल्चर जो इनलैंड मतलब इनसाइड विलेजर्स हैं उनसे यैम ले लेते हैं, और जो इनसाइड विलेजर्स हैं वो कोस्टल विलेजेस से फिश ले लेते हैं। तो फिश और यैम का एक्सचेंज आपस में दो कम्युनिटीज के बीच में, दो विलेजेस के बीच में होता है, और इसी को उन्होंने वासी एक्सचेंज सिस्टम कहा। और ये जो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है यैम और फिश का, इसको सगाली बोला। एंड इट डिफर्स फ्रॉम कुला, क्योंकि हियर जो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स है दीज आर कंज्यूम्ड। ये कुला से क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ यैम और फिश का कंजप्शन के लिए एक्सचेंज हो रहा है, जबकि कुला के केस में कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज कैन नॉट बी कंज्यूम। वहां पर जो रेड शेल नेकलेसेस या व्हाइट आर्म शेल ये ब्रेसलेट्स थी, उनका कंजप्शन नहीं था या यूज में नहीं लाना था, उनको जस्ट फॉर जो है वो एक्सचेंज के लिए, यूनिटी या इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, रिलेशंस बनाए रखने के लिए ही उसका इस्तेमाल हो रहा था। जबकि यहाँ पर यैम और फिश का कंजप्शन के लिए या यूज करने के लिए एक्सचेंज हो रहा है। जिनके पास जो प्रोडक्ट नहीं है वो उसका दूसरी कम्युनिटी से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले फिश ले लेते हैं एंड फिशिंग वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यैम एंड फिश का एक्सचेंज होता है, सगाली कहते हैं इसको, और दिस एक्सचेंज सिस्टम इज नोन एज वासी। देन अनदर एक्सचेंज सिस्टम इज उरुगुबु, एंड उरुगुबु जो है ये कल्चरल सिस्टम है टू सेंड 3/4 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू सिस्टर्स हस्बैंड वंस इन अ ईयर। ये भी ट्रोमैंड आइलैंड में ही उन्होंने पाया इस एक्सचेंज सिस्टम को। और इसमें क्या हुआ कि जो ब्रदर है वो अपनी बहन को साल में एक बार, बहन के परिवार को साल में एक बार अपनी जो एग्रीकल्चर का 3/4 हिस्सा दे देगा, मीन्स देता है। ये नियम है, और ये एक गिफ्ट के रूप में देता है, मीन्स ये नहीं कि बदले में उनसे कुछ अपेक्षा लेने की, just is a gift from brother's family to the sister's family, and once in a year the brother family give 3/4 of the agriculture product to sister's husband. Then this system is known as urububu system. Then third is the pokala. पोकला में क्या होता है कि when gift by someone is presented to village chief और मुखिया, तो विलेज का कोई भी व्यक्ति जब मुखिया को कुछ देता है गिफ्ट, उसको पोकला कहते हैं। एंड चीफ जो है उसके इंटर्न जो उस व्यक्ति को कुछ रिलीजियस या पॉलिटिकल सर्विसेज देता है, उसको योला कहते हैं। तो योला एंड पोकला, पोकला जो है एज अ गिफ्ट गिवन बाय सम विलेजर टू चीफ ऑफ द विलेज, एंड योला इज गिवन बाय चीफ to the villagers, and the objects present in Yula add some social value. So this is all about the functionalism school. Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel, and give your valuable comments in the description box of in the comment box of the video. Thank you. Meet you in the next video.